यीशु बुलाता तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. God's light is going to come into your life tonight. आज की रात परमेश्वर का प्रकाश आपकी जिंदगियों में आ जाएगा. He is the light of the world. वो इस दुनिया की ज्योति है. He has broken the darkness of sin. क्योंकि उसने पाप के अंधियारे को तोड़ दिया. In Matthew 6:22 and 23, मत्ती 6:22 और 23 में ऐसा लिखा है. the Lord Jesus Christ says, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं it is through your eyes that darkness comes into your life. कि ये तुम्हारी आंखें हैं जिनके जरिए वो अंधियारा तुम्हारी जिंदगियों में आता है. Next, your mouth brings darkness. देखिए दूसरा जो है ये आपका मुंह है जो अंधियारे को ले आता है. Man's mouth brings darkness. A woman's mouth brings darkness. पुरुष का मुंह या स्त्री का मुंह जो है वो अंधियारे को ले आता है. In Luke chapter 12 and verse 3, Jesus says, लूका 12वें अध्याय के 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, whatever you have spoken in the dark shall be heard in the light. कि जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा है वो उजियाले में सुना जाएगा. If you have spoken in the dark, it brings darkness in you. यदि आपने अंधियारे में कुछ कहा है तो उसकी वजह से अंधियारा आपके अंदर आता है. If you read Matthew 15 and verse 1, यदि आप मत्ती 15वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ें, there were some teachers who were teaching the scriptures to the people. और कुछ शिक्षक थे जो खुदा के कलाम को सिखाया करते थे लोगों को. They came to tempt and test Jesus. और वो आए यीशु मसीह की परख या परीक्षा करने को. And they were always asking things of the flesh. और वो हमेशा शरीर से ही संबंधित बातों को पूछते थे. If a woman marries 7 times in the world, अगर कोई औरत है जिस इस दुनिया में रहते हुए 7 पतियों If से she शादी की, dies, अगर वो मरती है, oh, in the resurrection, whose husband she will be? तो जब पुनरुत्थान होगा तब वो उसका पति कौन होगा? All the time thinking only the things of the flesh. हमेशा बस शरीर की ही बातों को सोचते रहते थे. One side they are teaching the scriptures because of their profession. और एक और तो वो क्योंकि उनका वही धंधा था तो इसीलिए वो अपने वचन को सिखाते थे. But the scriptures were not in their heart. लेकिन जो कलाम है वो उनके हृदयों में नहीं था. God's word was not in their heart. और परमेश्वर का वचन उनके हृदयों में Their नहीं था. heart was full of blasphemies, उनका जो हृदय निंदा से भरा हुआ था, full of evil thoughts, बुरे विचारों से भरा हुआ था, full of fornication, और बुरी अश्लीलता से भरा हुआ था, full of sinful thoughts. और सब पाप के विचारों से भरा हुआ था. But they were all the time professing the rituals and the ways that people should walk, do things as the things of God. और वो हमेशा बस सारे रीति रिवाजों को या फिर वो उन सारी बातों को लोगों को बताते थे कि किस तरह से लोगों ने परमेश्वर के रास्ते पे चलना है. When they came to Jesus और ऐसे लोग जब वो यीशु मसीह के and पास आए asked him, और उससे कहा, he said, तो उसने कहा, looking into their hearts, उनके दिलों में देखते हुए उसने कहा, your heart is full of darkness. तुम्हारे दिल में अंधियारा भरा हुआ है. Your mouth is not speaking life. It's not speaking the word of God. It's not bringing light to the world. तुम्हारे मुंह से जिंदगी की बातें नहीं आ रही हैं, लोगों के लिए या दुनिया के लिए उजियाले की बातें नहीं आ रही हैं. All the time you're speaking only words of darkness. और हर समय जब भी तुम बोलते हो तो अंधियारे की ही बातें बोलते हो. And you're bringing darkness into the lives of the people. और लोगों की जिंदगियों में तुम अंधियारे को ले आ रहे हो. Many times our hearts are like that. कई बार हमारे हृदय ऐसे होते हैं. Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं, outside you're saying Jesus, Lord, and praise the Lord, but your heart is far away from me. बाहरी रूप से तो तुम मुझे कहते हो कि यीशु मसीह और तेरी स्तुति हो, सारी बातें तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे कोसों दूर हैं.
This happened when my father started his ministry. और ये तब हुआ जब हमारे पिता ने जो है अपनी सेवकाई को शुरू किया। The same thing happened when I started my ministry several years ago, 32 years ago. और 32 साल पहले भी ऐसा ही हुआ जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की। I was preaching in a small church. मैं एक छोटी सी कलीसिया में जो है वो प्रचार कर रहा था। Only 100 people were there. वहां पे केवल 100 लोग बैठे थे। As I was preaching, और जैसे मैं खुदा का कलाम सुना रहा था, right before me, मेरे बिल्कुल सामने a lady was seated with others. एक औरत थी जो दूसरों के साथ बैठी हुई थी। And all were listening to me. और सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे थे। But this lady alone was looking at the other direction all the time. लेकिन ये अकेली औरत जो है किसी और दिशा में देखे जा रही थी। Though I was preaching God's word, God's love and so on, saying God loves you. और भले मैं परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, परमेश्वर के प्यार, उसकी मोहब्बत के विषय में बता रहा था, और ये मैं कह रहा था कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। On the other side, और दूसरी ओर I was looking at this lady. और मैं इस औरत को देख रहा था। And I was angry with her. और उसे देखकर मैं उस पर गुस्सा हो I गया। said, all are listening to me. मैंने कहा कि देखो सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, But this lady alone is looking in another direction. लेकिन अकेली ये औरत किसी और ही दिशा में देखे जा रही है। Sitting right in front of me. और बिल्कुल ये औरत मेरे ही सामने बैठी है। Has she come all the way to insult me? क्या ये इतनी दूर से आई है मेरी बेइज्जती करने के लिए? I was angry with her. और मैं उस औरत पे गुस्सा हो And I गया। was saying, if she doesn't want to hear what I'm speaking from the word of God, why should she come and sit right in front of me in the first row? और मैं अपने आप में कह रहा था कि अगर मेरी बातों को ये सुनना नहीं चाहती है तो क्यों यहाँ पर आकर एकदम पहले ही रो में आकर बैठ गई है? Though I was speaking the word of God, भले मैं परमेश्वर के वचन उस समय सुना रहा था, my heart was bitter. लेकिन मेरे दिल में कड़वाहट भर गई, Darkness, अंधियारा भर गया, the pride of life, जीवन का अहंकार आ गया, full of pride. पूरा गर्व से भर गया। Everybody should listen to me. मुझे ऐसा लगता था सभी ने मेरी I am सुननी a चाहिए, great man. क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा इंसान I हूँ, am a great man. मैं बड़ा आदमी हूँ। Pride of life. जीवन का अहंकार। Though my words were about Jesus, भले मेरी बातें शब्द जो थी वो यीशु मसीह के बारे में थी, my heart was dark. लेकिन मेरे दिल में अंधियारा My था। heart was full of darkness. मेरा दिल अंधियारे से भरा हुआ था। Oh, with that bitterness, I was preaching God's word. और ऐसी कड़वाहट को अपने अंदर भरकर मैं परमेश्वर के कलाम को सुना रहा था। And I prayed, Lord, have mercy on these sinners, forgive them. और मैं वहां से दुआ कर रहा था कि हे खुदावन ऐसे सारे पापियों पर तू दया कर, इन्हें माफ कर। And the meeting was over. जब सभा समाप्त हो गई And one by one, they started coming for prayer. और एक एक करके ये मेरे पास आने लगे प्रार्थना करवाने के And you लिए। won't believe this lady came for prayer first. और आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे पहले ये औरत ही दौड़ती आई प्रार्थना करवाने के लिए। But she could not come all by herself. लेकिन वो अपने आप से नहीं आई, Somebody brought her. किसी ने उसे लेकर आया। And as she came near, और जैसे वो मेरे नजदीक आई, oh, she put her hands on my face, उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पे रखा, trying to feel me. मुझे महसूस करने की कोशिश कर रही थी। And she said, और उसने कहा, I've been waiting for this moment for a long time. उस औरत ने कहा कि इस क्षण का मैं इंतजार कितने सालों से कर रही थी। Inside, I was angry. अंदर से तो मैं गुस्से में था, But she's saying, I'm waiting for this moment for a long time, my son. लेकिन इस औरत ने कहा कि बेटे इस दिन के, इस समय के आने के लिए मैं कई सालों से इंतजार कर रही थी। And she said, और उसने कहा, Son, बेटे I lost the vision of my left eye. मेरी जो बाईं आंख है उससे मैं अब देख नहीं पाती हूँ। It broke my heart. I could not see. मैं देख नहीं पाती, इससे मेरा दिल टूट गया है। And the same disease came to my right eye. और वही बीमारी मेरी दाहिनी आंख में भी आ गई। Almost all the vision is gone. और मेरी पूरी नजर से मेरी नजरें चली गईं। I can see only with the edge of my eye now. और अब ऐसा हो गया कि अपनी आंखें बिल्कुल घुमा के आंखों की तिरछी नजर से मैं अब देख पाती हूँ। I turned my eyes and I tried to look at from the edge of my eyes. और मैंने भी ऐसे अपनी आंखें घुमाकर अपनी आंखों की एक ओर से छोर से देखने की कोशिश की। Pray for me, son, that I'll be healed. इस औरत ने कहा कि मेरे बेटे मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं चंगी हो जाऊं। Pray for my eyes. मेरी आंखों के लिए तू दुआ कर। If you pray, God will give back my eyes. अगर तू दुआ करेगा खुदा मेरी आंखें वापस मुझे लौटा देगा। Did I have the faith to pray?
क्या ऐसे में मेरे दिल में विश्वास था ऐसी औरत के My लिए heart प्रार्थना was करने के लिए? broken to pieces. जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल टुकड़ों में टूट गया। Instead of praying for that mother, I began to pray for myself. इसके बजाय कि मैं उस माँ के लिए प्रार्थना करूं, मैं सबसे पहले अपने आप के लिए दुआ करने लगा। Lord, I'm a sinner. मैंने कहा खुदा देख मैं गुनहगार हूँ, I am preaching, और देख मैं खड़ा होकर but तेरे I कलाम am को in सुना रहा हूँ, darkness, Lord. लेकिन खुदा मैं खुद अंधकार में हूँ। I am preaching, मैं तो तेरा कलाम सुना रहा हूँ, but I, Paul Dinakaran, am in darkness. लेकिन मैं जो पॉल दिनाकर ने खुद अंधकार में हूँ। How can I pray for this dear loving mother who has believed in me? ऐसी हालत में मैं कैसे इस प्यारी माँ के लिए जो मुझ पर ईमान लाते हुए यहाँ तक आई है, मैं कैसे इसके लिए दुआ करूं? She has believed in me, इसने मुझ पर विश्वास रखा है, but I am full of pride. लेकिन मैं तो अंदर से गर्व से भरा Instead हूँ। of loving her, इसको प्यार करने की बजाय I have condemned her. मैंने इस पर दोष I लगाया, have condemned her. मैंने इस पर दोष लगाया। Forgive me. मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर, Forgive me. मुझे माफ कर, Take away the darkness that is in me. जो मेरे अंदर अंधियारा है तू उसे निकाल दे, Fill me with thy light. और तेरी प्रकाश से मुझे भर दे। I cried for myself. सबसे पहले मैं अपने आप के लिए रोया। That's what happens. ऐसा होता है, Our heart is dark, हमारे दिल में अंधियारा होता full है, of bitterness, कड़वाहट से भरा होता है, pride of ourselves, अपने आप के बारे में गर्व होता है, proud of ourselves, अपने आप में अहंकार होता है, full of pride. बिल्कुल गर्व से भरे We होते are हैं। not able to enjoy or reciprocate the love that others show to us. और ऐसे में जो प्रेम जो मोहब्बत दूसरे हमें दिखाते हैं उसका हम आनंद नहीं ले पाते, उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। You may be in that position. हो सकता है आज आप भी ऐसी हालत में Your हो। wife may be loving you so much, हो सकता है आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, but you as a husband may be full of pride, लेकिन आप एक पति होने के नाते आप गर्व और अहंकार से भरे हैं। with darkness in you, आपके अंदर अंधियारा है unable to bring light to them. और उनमें ज्योति ला नहीं पा रहे। Maybe as a wife you are full of darkness. हो सकता है एक बीवी होने के नाते आप अंधकार से भरी हो, You are unable to give light to your children. आप अपने बच्चों में उस ज्योति को लाने के काबिल नहीं They are रही। depending on you for everything, for their love, for their life. आपकी संतानें हर बातों में आपके ऊपर आधारित है, वो आपसे प्रेम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, But you are bitter. लेकिन आपके अंदर कड़वाहट भरी है। Darkness may have surrounded you. अंधियारे ने तुम्हें घेरे रखा है, Because of that, darkness would have come into the whole family. और उसकी वजह से वो अंधियारा जो है पूरे परिवार पर, But पूरे tonight खानदान you पर can आया have है। the light of the world. लेकिन आज की रात वो जगत की ज्योति को आप पाएंगे। You can have the light of the world. आज की रात आप उस जगत की ज्योति को पा To सकते हैं, become the light, to bring light into your family. ताकि वो उजियाला बन जाए और वो उजियाला तुम्हारे परिवार में आ जाए। Look at him on the cross. क्रूस पर उस यीशु को देखें। Though they were reviling at him and condemning him, भले लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, the Bible says in Isaiah 53:9, और यशायाह 53:9 में कहा गया है no deceit came out of his mouth, कि उसके मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं निकली, only light, केवल only उजियाला, love, केवल प्रेम, only forgiveness. केवल मुआफी। That is the heart God is going to give you tonight. ऐसा ही दिल आज वो खुदावंद आपको दे देगा। Let's listen to this wonderful testimony before we pray together. और इससे पहले एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आइए, एक बहुत ही अच्छी गवाही है जिसको हम सुनेंगे। I am going to invite Mrs. Reena Singh all the way from Lucknow to come and share what God has done in her life and in her family. और हम जो है लखनऊ से आई हमारी बहन रीना सिंह, इनको हम मंच पे बुलाना चाहेंगे और हम सुनना चाहेंगे कि उस खुदावंद ने इनकी जिंदगी में क्या किया। Amen. Shall we listen to her testimony on the screen and then we will listen to her. आइए, सबसे पहले हम इनकी गवाही को उस स्क्रीन पर सुनेंगे और उसके बाद हम इन्हें यहाँ पर सुनेंगे। मेरा नाम रीना सिंह है और 1988 से मैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री से जुड़ी रही। 1989 में जब अंकल डीजीएस दिनकरन का कैसेट जो कि मैं घर पे देख रही थी, और उसके देखने के समय परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से भरा, जिसके लिए मैं करीब 3-4 साल से बड़ी गहरी लालसा थी और मैं बराबर प्रार्थना में थी। और उसके ठीक नेक्स्ट डे परमेश्वर ने मुझे नई अन्य भाषा बोलने का भी वरदान दिया। 90 में मेरी मैरिज लखनऊ में हुई। मेरा नाम सुनील सिंह है और ये मेरा परिवार है। और जब इस परिवार से आके मैं जुड़ी तो मैंने जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ सबको बताया। शादी से पहले भी बहुत ही ज़्यादा शैतान इंसान था मेरा, लेकिन शादी के बाद ये आई और इन्होंने जीसस कॉल से हम लोग सब जने जुड़े। शैतानी होने के बाद भी हमने अपने गुनाहों को अपने मन से माना
तो खुदा ने शायद वो हमें गुनाहों को हमारे माफ़ किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब हमने टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर कराया और उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता। Dear brother Sunil Singh from Lucknow, UP, happy birthday brother. परमेश्वर ने भाई की प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके दिए हुए वचन के द्वारा बड़ी आशीषें दी, उनके बिजनेस पे आशीषें दी। Father, prosper the business of our dear brother and give him peace in double measure from today. मैंने अपना सुनील प्लास्टिक के नाम से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जो आज खुदा का शुक्र है कि वो सुनील प्लास्टिक का बिजनेस लखनऊ में जाना जाता है कि एक इंसान दूर तक उस बिजनेस को जानता है। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें 1000 गुना लौटाया, जिसके द्वारा जो है हम अपना खुद का मकान खरीद सके। ये बहुत अजीब तरीके से हुआ, परमेश्वर की अद्भुत योजना के अनुसार हुआ, जबकि हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। और उस मकान को मैंने जो 8 लाख रुपए का ख़रीदा है आज उसको हम कह रहे 23 लाख रुपए आज हमें 1 हफ्ते के बाद उसको मिल रहे थे। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष थी भाई की प्रार्थनाओं के द्वारा। Bless Mrs. Reena Singh with blessings. मैं रीना को आप आशीषों के साथ आशीषित करें। जून के लास्ट में परमेश्वर ने मुझे मेरे सर्विस में प्रमोशन दिया और सिस्टर की पोस्ट पे मुझे बढ़ाया आगे। कोई ऐसी हमारी ज़रूरत नहीं है जो खुदा से उसने हमारी पूरी ना करी हो। सारी आदर महिमा सब हर चीज़ की ज़रूरतें उसने हमारी पूरी करी, उसका धन्यवाद हो। Amen. Shall we clap our hands and give Jesus all the glory? आइए तालियां बजाकर सारी महिमा यीशु मसीह को दें। This is Mrs. Reena Singh. I'm seeing her for the first time. और ये बहन रीना सिंह हम इन्हें पहली बार ऐसे देख रहे हैं। This is Brother Singh. Wonderful. What's your name? अर्पिता। Praise God. You're from Lucknow. Praise God. What a wonderful testimony. What great things God has done in their life. और कितनी बेहतर इनकी गवाही है उन सारी बातों के लिए जो महान बातें हैं खुदा ने इनकी जिंदगी में की हैं। Brother, how did God touch your life? भाई परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी को छुआ, बताइए। जी, हर इंसान जैसे आप लोगों ने अभी मेरी गवाही को सुना है, तो उसी तरह से जिस तरह से एक इंसान को ये होता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको कुछ उठाना है तो उसको एक ताकत की ज़रूरत होती है, कुछ ख़रीदना है तो पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ बनाना है तो रोज़गार की ज़रूरत होती है, और इन सब चीज़ों को पाने के लिए खुदा बाप की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को पाने से पहले मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझको ये सब चीज़ें दी। प्रभु का धन्यवाद हो। God has blessed this family filled with His light. God wants to fill your family also with His light. और उसी तरीके से परमेश्वर ने इस परिवार को अपनी उजियाले से भर दिया। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर आपके परिवार को भी अपने उजियाले से भरना चाहता है। Open your heart for Jesus to come into you. और यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोलें ताकि वो आपके दिल में आए। Right now the Holy Spirit will come upon you. इसी समय वो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, enter into the heart of your children. अपने बच्चों के हृदयों पर प्रवेश करें, Cleanse their heart. उनके हृदयों को शुद्ध करें, Cleanse their mouth. उनके मुंह को साफ करें। Let every corruption, sin, wickedness come out of their hearts. हर एक प्रकार का पाप, हर एक विकृति और हर एक दुष्टता यीशु के नाम से बाहर चली जाए। Let them be free in Jesus' name. यीशु के नाम में वो आजाद हो जाएं। And now you guilt, और हर एक अपराध बोध, you hurt, हर एक चोट, you pain, हर एक दर्द, you depressions, तुम जो अवसाद हो, you discouragements, तुम जो निराशा हो, you fears, तुम जो भय हो, come out of their hearts in Jesus' name. यीशु के नाम से उनके हृदय से निकल जाओ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, please fill their hearts with your peace that you have forgiven them. आप उनके हृदयों को इस क्षमा के साथ अपनी शांति से भर दें। Let them feel forgiven. और वे महसूस करें कि उन्हें क्षमा मिली है। Let your peace fill their hearts. आपकी शांति उनके हृदयों को भर दे। Lord, now make them prophesy in Jesus' name. प्रभु जी, इसी समय यीशु के नाम से वो भविष्यवाणी करने लगे। Let the Holy Spirit of God fill their hearts, Lord. परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन्हें भर दे स्वामी। They are little children to you. वे आपके लिए नन्हे बालक से हैं। Please appear to them, Lord. आप उन्हें दर्शन दे प्रभु। Cleanse their hearts.
उनके हृदयों को शुद्ध करें। Let them begin to see the visions of Jesus in their heart. वे अपने हृदय में यीशु के दर्शन को पाने लगेगा। Lord, fill them with peace. प्रभु आप उन्हें शांति से भरें। Let their families have peace. उनके परिवारों में शांति, Let their bodies be healed. उनके शरीर चंगे हो जाएं And let them always excel in their jobs, excel in their study. और वो हमेशा अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ होते चले जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Anthony, एंथनी, God touches you. परमेश्वर आपको छू रहा है। You will have a successful future. आप एक सफल उज्जवल भविष्य पाएंगे। God heals you परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है and gives you a beautiful job. और आपको खूबसूरत नौकरी दे रहा है। You have Anthony Raj as your name. आपका नाम एंथनी राज है। Krishi, कृषि, God touched you right now. इसी समय ईश्वर ने आपको छुआ है। All the depressions are leaving you. हर एक अवसाद आपको छोड़कर जा रहा है। You will have a peaceful family life. आप एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन को पाएंगे। Your wife will be a blessing to you. आपकी पत्नी आपके लिए एक आशीष होगी। Thank you, Lord, for blessing them. धन्यवाद प्रभु ने आशीष देने के लिए। Hemant, हेमंत, God touched you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुआ है। The paralysis in your body is being healed in Jesus' name. आपके शरीर का लकवा इसी समय यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। Rise up and be healed. उठ खड़े हो और चलो। Arvind, अरविंद, you've been a failure for so many years. अनेक वर्षों तक आप एक असफल व्यक्ति रहे। Now God is giving you victory from today. आज से परमेश्वर आपको जय दे रहा है। You are God's child. आप परमेश्वर की संतान हैं। Rise up and prosper. उठ खड़े हो और उन्नत हो। Sunia, सोनिया, God touched you right now. परमेश्वर ने आपको इसी समय छुआ है। Yes, you will have a golden future. हाँ, आप एक स्वर्णिम भविष्य को पाएंगे। God will arrange everything for your marriage and your future. परमेश्वर आपके विवाह और आपके भविष्य के लिए सब कुछ व्यवस्थित करेगा। Thank you for blessing her, Lord. धन्यवाद प्रभु से आशीष देने के लिए। Everyone who needs a married life, हर एक जिन्हें एक पारिवारिक आशीषित जीवन चाहिए, let the blessing come upon them today. आज विवाह की आशीष उन पर आ जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में bless this day, Lord. इस दिन को आशीष दे प्रभु। Amen. आमीन। My friend, God bless you. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे।